اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اگر ان کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو معاشرے کے آدھے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے. اگر عورت کو شادی کا حق ہے, جینے کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق دیا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے جاگیردار ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حق دیتے ہیں. خواتین کے جو مسائل ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے. دیکھیں انہیں گھر کا سسٹم چلانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین, آج 8 مارچ ہے اور خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی قیادت میں آج ریلی نکالی گئی ہے اور آواز بلند کی جا رہی ہے فلسطین کے حق میں اور عورتوں کے حق میں. اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور ان کے کارکنان کی کافی تعداد موجود ہے, خواتین کی کافی تعداد یہاں پہ موجود ہے. ایک طرف سے دوسرا مارچ بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو ان کا کون سا مارچ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں آزادی ملنی چاہیے. اسلام کے مطابق عورت کو آزادی ملی ہے, مگر وہ عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں اسلام کے مطابق آزادی نہیں ملی. وہ بھی مارچ کرتی ہیں, یہ بھی مارچ کرتی ہیں. ان دونوں میں سے فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا خواتین سے بات کر کے. تو آئیے میرے ساتھ. میڈم کیا کہیں گی, آج عالمی دن منایا جا رہا ہے عورتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب, دیکھیں دنیا کے اندر عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اس کے لیے لاٹھی کو ضروری قرار دیا کہ عورت کو سیدھا رکھنے کے لیے سوٹی استعمال کرو. لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا, آزادی دی, اسے عزت دی اور وقار دیا. لہٰذا اسلام کی چھتری ہی محفوظ عورت کے لیے حفاظت کی ضمانت ہے. اچھا میڈم, کچھ عورتیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے تو آزادی دی ہوئی ہے عورتوں کو, کچھ وہ بھی عورتیں ہیں جو آزادی کے لیے حق مانگتی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے تو تمام حقوق دے دیے, لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارے آئین بھی دیتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو اصل چیز یہ ہے کہ عورت کو حقوق اسلام نے دے دیے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا مملکت کا کام ہے. جیسے آئین کا آرٹیکل 35 یہ کہتا ہے کہ خاندان, عورت اور بچے کا تحفظ مملکت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ بتائیں معاشرے کے اندر وہ تحفظ عورت کو نہیں مل رہا, اس لیے وہ عورت مجبور ہے کہ وہ حقوق مانگے. اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اگر ان کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو معاشرے کے آدھے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے. اگر عورت کو شادی کا حق ہے, جینے کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق دیا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے جاگیردار ہیں, کتنے وڈیرے سیاستدان ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حق دیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام نے بھی حقوق دیے, آئین پاکستان بھی اس کی ضمانت دیتا ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اس لیے آج کی عورت کو اگر وہ حقوق چاہیے, حقوق موجود ہے, ایسی حکومتیں ہونی چاہیے جو کہ اس کو امپلیمنٹیشن کریں اور خواتین کو وہ حقوق دیں. ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ نہیں ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں واقعہ ہو رہا ہو, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے. گھریلو تشدد سے لے کر جنسی زیادتی سے لے کر اور اس کی تحقیر کی جاتی ہے, اور اس کی تحقیر گھر کے اندر بھی ہوتی ہے, گھر کے باہر بھی ہوتی ہے. اس کی تحقیر میڈیا بھی کرتا ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں وہاں پر کیا دکھایا جا رہا ہے, جو مقدس رشتے ان کو پامال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو کھوکھلا پن ہے وہ اسی وجہ سے آ گیا ہے کہ عورت کا جو اصل مقام ہے ہم نے اس کو وہ مقام نہیں دیا. عورت کی جو اصل ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم نے اس کو معاش کی چکی میں لگا دیا ہے. اگر عورت نسلوں کی معمار اسے کہا جاتا ہے, اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے, اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے, ہاں اس کے ساتھ جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں, جو اس کی صلاحیت ہیں, وہ کچھ پیشے اختیار کرے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ ٹیچر بن سکتی ہے. لیکن آپ نے اس کو سڑکوں پہ بھی لا کر کھڑا کر دیا, آپ نے اس کو لا کر بڑے بڑے مالز کے اندر بھی سامان بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا, آپ نے اس کو شو پیس بنا دیا. تو پھر کریں ہماری نسلوں کی تعمیر کہاں پہ ہوگی؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے, سوچنا چاہیے اس کے اوپر. آپ لوگوں کو بھی میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, ہماری نسلوں کے معمار کو کس کام پہ لگا دیا ہے. جو اسلام نے اسے حقوق دیے وہ حقوق دے اسے, وہ حق دے اسے. اور آج دیکھیں سب سے زیادہ مظلوم جو عورت ہے وہ فلسطین کی عورت ہے, جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور ہے, جو اپنے مسمار گھروں کے اوپر بیٹھنے پر مجبور ہے.
तो इसलिए हम आज का दिन उनके नाम करते हैं। नाज़रीन, ये ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद है और सिराजुल हक साहब भी अपना खिताब कर रहे हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगी, फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मर्दों के ऊपर, कोई यहाँ पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, आज का दिन हम फ़लस्तीनी खातून के नाम कर रहे हैं, कश्मीर की खातून के नाम कर रहे हैं, जिसके पास ना खुराक है, ना सेहत है, इवन उसके पास ज़िंदगी का हक भी नहीं है। हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि आलमी अमन के जो ठेकेदार हैं वो इसराइल दहशतगर्द की पुष्टपनाही करना छोड़ दें, और जो इतना बारूद वहाँ पर गिराया जा रहा है और फ़लस्तीन से उनसे ज़मीन का हक भी छीना जा रहा है, ज़िंदगी का हक भी छीना जा रहा है, और पूरी दुनिया इसके ऊपर चीख रही है, इसलिए उनको उनका हक देना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि लाहौर की कितनी बड़ी ख़वातीन की तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ये सब इस इज़हार यकजहती के लिए और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि फ़लस्तीन की औरत को उसका हक दिया जाए। हमारे माशरे में औरतों को बड़ा शिद्दत का निशाना बनाया जाता है, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, आए रोज़ कोई न कोई वाक़यात रोनमा होते हैं। जैसे आपने देखा कुछ रोज़ पहले एक औरत के जो कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ASP ने बचाया उसको, क्या कहेंगे? औरत अभी तक आज़ाद नहीं है। जी, हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि औरत को पाकिस्तान के अंदर हकूक़ मुयस्सर हैं, क़वानीन के अंदर भी मुयस्सर हैं, और इस वक्त ये छोटी छोटी जो है वो चीज़ें मसला नहीं है। मसले जो है वो असल में, तो अगर हम कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर जाएँ वो बड़े मसाइल हैं, ये कोई ऐसे मसले नहीं जिसके लिए हम ऐसे करें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मर्द भी इतना शऊर रखता है कि वो औरत का जो है वो तकद्दुस जानता है। ज़रूर ऐसा तबका भी मौजूद है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। हम थोड़ों को जो है वो बहुत जो है वो बढ़ा के नहीं पेश कर सकते। असल जो मसाइल हैं उनकी तरफ हम आए। पाकिस्तान के अंदर भी औरत का जहाँ जहाँ इस्तेसाल हो रहा है, हम ज़रूर उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है वो फ़लस्तीनी औरत के लिए आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मैडम सफ़िया नासिर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, मुझे बताएं, आप लोग भी एहतजाज भी करते हैं और सड़कों पे भी आते हैं, नारा बुलंद करते हैं औरतों के हवाले से। आज 8 मार्च है, ख़वातीन के हवाले से। वो औरतें भी हैं जो कहती हैं इस्लाम के मुताबिक आज़ादी तो सबको मिली हुई है, मर्द हो या फिर ख़वातीन हो। वो औरतें भी हैं जो ड्रेसिंग ऐसी करती हैं खुद देख के शर्म आती है। आप भी एहतजाज कर रही हैं, बुलंद आवाज़ कर रही हैं फ़लस्तीन के हक़ में, औरतों के हक़ में, क्या कहेंगे इसके हवाले से आज? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आपने हमारे पास आए। सबसे अहम चीज़ देखें, ये जो आज आप देख रहे हैं कि ख़वातीन का जमात इस्लामी पर एतमाद, देखें ख़वातीन के राइट्स जो है ना, देखें पहले से दे दिए गए हैं। किसने दिए हैं? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से दे दिए, और इस्लाम आया और ख़वातीन के। लेकिन अब असल जो मसला है ना, जो उसके हक़ हैं वो उसे नहीं दिए जा रहे। इसलिए ख़वातीन को कोई ऐसा शेल्टर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उनके मसाइल को हल कर सके। देखें सियासी मैदान में भी अगर देखा जाए, सियासत भी है, ख़वातीन सियासत में आती भी हैं, लेकिन ख़वातीन के मसाइल जूं के तू हैं। आप देखें कारोकारी हो रही है, वनी की रस्म आज भी है। आप इस पे देखें कि कुरान से शादियां आज भी हैं। देखें आज के दौर के अंदर जो ग्लोबलाइज विलेज हो चुकी है, दुनिया एक टच पे है, लेकिन ख़वातीन के मसाइल के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं करता। ख़वातीन के मसाइल के लिए हम चाहते हैं कि जो कवानीन उनके तय हो गए हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी है और फिर महंगाई है। देखें उन्हें घर का सिस्टम चलाना सबसे बड़ा मसला हो चुका है, और जो ख़वातीन फील्ड में काम कर रही हैं बल्कि वो दोहरा जिहाद कर रही हैं। इस वक्त वो घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं, लेकिन उनके मसाइल कोई हल नहीं करता। कहीं वो बेचारी उनसे ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर उन्हें इस्तेसाल किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। देखिए हर तरह से ख़वातीन को जो ना इस वक्त वो मज़लूमियत का शिकार है, और उसके बस हम ये चाहते हैं, जमात इस्लामी ये चाहती है कि गज़ा की औरत के ऊपर जो है, देखें जो इस वक्त उन्हें घरों से बेघर किया गया, उनके वो अपने बच्चों की लाशें भी उठा रही हैं, अपने शोहरों की लाशें भी उठा रही हैं, उनके सर के ऊपर कोई छत मौजूद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान और तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरान ख़वातीन के ऊपर आवाज़ उठाएं, और उनमें सबसे पहले कश्मीर और गज़ा की ख़वातीन हैं जिनके मसाइल को हल किया जाए। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया, आलमी दुनिया के जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो कहाँ है, वो किधर सो रहा है? उसको इस वक्त जागने की ज़रूरत है। देखें एक औरत पर जुल्म होता है तो तमाम मगरबी मीडिया भी और तमाम अक़वाम मुत्तहिदा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो इतना जुल्म हो रहा है कश्मीरी ख़वातीन पर, फ़लस्तीनी ख़वातीन पर, ना वो औरतें भी तो है ना, वो कहती हैं जी, वो उनका स्लोगन है जी, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी।
उनके बारे में क्या कहेंगे आज? देखिए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनके बारे में यही कह सकते हैं कि देखिए वो अपना काम कर रही हैं और हम अपने दायरा कार में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं। लोगों को खुद पता चलना चाहिए कि देखें ये एक दिन नहीं है उनके लिए हम खड़े हुए हैं। हमारे पास जमात इस्लामी के पास पूरा साल है, हम उनके लिए ख़वातीन के मसाइल के लिए पूरा साल काम करते हैं। हमारे देखें अलखिदमत का सिस्टम है, हमारे पास विल फोरम है, हमारे पास ख़वातीन के जो भी मसाइल होते हैं, उनकी बेरोज़गारी, उनके राशन, उनके विंटर पैकेजेस, उनके घरों के मामलात, सारी चीज़ों को जमात इस्लामी और अलखिदमत लेकर चल रही है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन निकला जाए। जमात इस्लामी हर दिन ख़वातीन के लिए, उनके हक़ूक़ के लिए। आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? नई जनरेशन को यही देना चाहेंगे कि देखें, इस वक्त जो सबसे अहम मसला है हमारा तालीमी सिस्टम जो मखलूत है, उसके अंदर ख़वातीन और जो बच्चियों के साथ ज़्यादती के मामलात है, वो हम उन्हें चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को ऐसी तरबियत और ऐसी तालीम दी जाए जिसके अंदर से एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ सके। हम बेहतरीन मैसेज उन्हें देना चाहते हैं कि उनकी तरबियत के बेहतरीन सिस्टम जो है वो सबसे पहली तरबियत तो माँ की होनी चाहिए, माँ की बेहतरीन तरबियत की जाए ताकि अच्छी नस्लें परवान चढ़ सकें। नाज़रीन, आपने मैडम सफ़िया नासिर की बातें सुनी और एक ही मुतालबा है कि फ़लस्तीन के हक़ में हुक्मरान जो सोए हुए हैं वो जागें और आवाज़ उठाएं। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हमारा हाल भी यही होगा। तो नाज़रीन, ये देखते हैं कि हुक्मरान हमारे सोए हुए जागते हैं या नहीं जागते, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।